Dear students, today is the second lecture of strength of material. In last lecture, I have discussed something about the small definitions or basics of the strength of material subject. Now we will move further. In this lecture, I will discuss some more definitions as well as go to the some numerical problems and these numericals are very important for the university exam. So first, what is the modulus of elasticity? You have already read the definition in last classes. For elastic bodies, ratio of stress to strain is a constant. So in last lecture, I have already told that when we apply the force over the body is try to elongate. Now there is some strain as well as some stress induced inside the material. So the ratio of stress to strain is constant and known as the Young modulus of elasticity. It is denoted by E is equal to sigma divided by epsilon. Okay. Now modulus of rigidity. In the case of Young modulus, when the body you have apply axial load over the body. So if this is the axis of the component and you apply the load in the direction of axis of the component, then it is elongated. At that time the stress induced is sigma and the stress developed inside the material is epsilon. Then their ratio is known as the modulus of elasticity. But if in the case of shear stress or shear strain, the ratio is known as the modulus of rigidity. So the second definition is, what is the modulus of rigidity? So for elastic bodies, ratio of shear stress. These are the important terms. Shear stress, so shear strain is constant and is non modulus of rigidity. It is denoted by G is equal to tau divided by phi. Okay. Then the elongation of the bar delta L, elongation of the bar is known as delta L is equal to PL by AE. ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? E is equal to sigma divided by E. Sigma equal to P divided by A, sorry, epsilon, and epsilon is equal to delta L divided by L. So you put these values, E is equal to P divided by A, delta L divided by L, then you will find out delta L is equal to PL divided by A. This is the most important formula that will use in numerical problem. Okay. So if you are applying the P force over the body, suppose this is the body or this is the bar which has the length L. Okay. It has the cross section area A and you apply the load P and material have the modulus of elasticity E. Then the elongation delta L due to this load P is equal to PL by A. तो ये फॉर्मूला आप रिमेम्बर रखेंगे, याद रखेंगे. ओके. Now this formula of elongation is used in principle of superposition. तो what is the principle of superposition? तो देखते हैं क्या है. So the principle of superposition state that if a body is acted upon by number of loads on various segments of the body. Okay, if the body have the number of segments and there are number of forces acting over these segments, then the net effect on the body is the sum of effect caused by each of the loads acting independently on respective segment of the body. Thus each segment can be considered for this equilibrium. This is done making a diagram of segment along with various forces acting on it.
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि सपोज कोई बॉडी है या बार है, इसके कई सेगमेंट है। मान लिया ये ए पॉइंट है, ए बी सी एंड डी। So there are three bars actually. If you are applying the 3 kilonewton load here, 3 kilonewton load here, you are applying 1 kilonewton load here, 2 kilonewton load here. So different segments have the different loading. In that situation, principle of superposition says that the total sum of the elongation in the bar is the sum of elongation in individual bars. दिस इज द फर्स्ट बार, इसमें elongation अलग होगा, दिस इज द सेकंड बार, इसमें elongation अलग होगा, इसमें थर्ड बार, इसमें elongation अलग होगा। तो इन सब के elongation के सम के बराबर होगा। एंड ऑल द बॉडीज इंडिविजुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों बॉडी अलग अलग इक्विलिब्रियम में होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो दिस इज न्यूमेरिकल। A circular steel bar of various cross section is subjected to pull of 80 kilonewton as shown in figure. Determine the extension of the bar E is equal to 204 gigapascal. ओके, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसमें देखो कई सेगमेंट हैं। मान लीजिए ए पॉइंट ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है और एफ है। ओके, इसमें देखो ए बी और ई एफ सेम लेंथ के सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं। बी सी और डी ये सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं। सी डी जो है अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का है। ओके, दूसरा लोडिंग केवल एक ही 80 किलो न्यूटन की लगी है, बीच में कहीं लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर जो मैं ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ए बी, इस पे 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा होगा। ठीक है, इसकी लेंथ 400 mm होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए इज इक्वल टू पाई 4 इंटू 80 का होल स्क्वायर होगा। यही ई एफ के साथ होगा, तो ए बी और ई एफ तो एक ही हो गए। इसके बाद बी सी, बी सी पे भी सेम लोड लग रहा होगा 80 किलो न्यूटन का। ठीक है, लेंथ 300 mm होगी, डायमीटर 60 mm होगा, तो एरिया पाई 4 इंटू 60 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट बचा सी डी, सी डी। ठीक है, तो सी डी की लेंथ है 500 mm, डायमीटर जो है 100 mm है, तो एरिया हो गया पाई 4 इंटू 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एलोंगेशन देखा जाए तो टोटल एलोंगेशन डेल्टा एल जो होगा, तो चेंज इन एलोंग मतलब लेंथ इन ए बी, ओके, प्लस डेल्टा एल इन बी सी प्लस डेल्टा एल इन सी डी प्लस डेल्टा एल इन डी ई प्लस डेल्टा एल इन ई एफ। ओके, इसमें देखो डेल्टा एल ए बी में जो होगा वही डेल्टा एल ई एफ में होगा। ठीक है, तो ये ए बी वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ए बी, और बी सी वाला भी 2 गुना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी।
तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पी एल ए बी डिवाइड बाई पाई/4 इंटू 80 का होल स्क्वायर प्लस 2 एल बी सी इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर प्लस लोड भी होगा P प्लस सी डी पे कितना लोड लगेगा, P 500 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 500 का होल स्क्वायर, और E जो है वो तो आपका कॉमन आ ही जाएगा। ओके, इसे बिगाड़ देता हूं मैं। तो अगर देखा जाए ठीक है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी को भी बाहर ले लेते हैं, तो 800 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई पाई, ई की वैल्यू 204 इंटू 10⁻³ इंटू 4, ये कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो 2 इंटू 400 डिवाइड बाई 80 का होल स्क्वायर प्लस 2 300 डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर प्लस 500 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। ये आपका एलोंगेशन आ गया, तो आप इसे कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट इसे करते हैं आगे, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी सबकी सम की 3.34167। अब अगर इसे पार्ट को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 800 इंटू 4 डिवाइड बाई 204 डिवाइड बाई शिफ्ट दबा के पाई इंटू 0.34167। तो इसका आंसर आना चाहिए डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.7059 मिलीमीटर। दिस इज द टोटल एलोंगेशन अगर इन होल कंपोनेंट ड्यू टू दिस लोडिंग। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, अब आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका देख लो, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आता है। तो देखो इसमें क्या क्या सेगमेंट बने, ए बी, बी सी और सी डी। तो सबसे पहले ए बी को इक्विलिब्रियम में लाते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से फोर्स एक्टिंग करेंगे। तो इस पर देखो 60 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपको लेफ्ट साइड पे तो आपको फोर्स पता लग गया 60 न्यूटन का लग रहा है, राइट साइड पे आपको पता लगना है कितने का लगेगा। तो क्या करो, हमेशा एक लाइन ड्रॉ करो बीच में। ठीक, जब जिस सेगमेंट पे है तब बीच में उसके एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लेफ्ट साइड पे जितना फोर्स का सम होगा उतना ही राइट साइड पे होगा। तो 60 को इधर लग रहा है, तो 60 किलो न्यूटन का इधर भी लगेगा ए बी के ऊपर। फिर बात आती है बी सी की, बी और सी की। तो एक बीच में लाइन ड्रॉ करो बी सी की। अब इसके लेफ्ट साइड पे देखो कितना फोर्स हो गया, 60 + 20 80 हो गया,
और बाहर की तरफ है 80 किलो न्यूटन का, तो ध्यान रखो इस डायरेक्शन में भी 80 किलो न्यूटन का ही लगेगा, तभी इक्विलिब्रियम रहेगा। अब बात आती है CD की, तो CD के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। इसके लेफ्ट साइड पे कितना फोर्स है देखो, 60 + 20 एक साइड पे है 80, और 30 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना बचा 50। लेकिन 50 किधर बचा, बाहर की डायरेक्शन में, तो 50 इधर भी होगा। तो ये तो हो गया फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, इसकी लेंथ है 1 मीटर, और इसकी लेंथ है 3 मीटर। तो आप डेल्टा एल निकाल सकते हैं, डेल्टा एल ए बी, डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो गया, पी एल बाई ए, तो 16 × 10⁻³ ए बी के ऊपर, एल कितनी है 2000 mm, सारी डायमेंशन mm रखनी है। ए एरिया कितना है इसका टोटल, सबका ही डायमीटर जो है 25 है, तो ए तो पूरा कॉमन ही हो गया एक तरह से, तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो 4 डिवाइड बाई पाई, एक मिनट, 1/ए पूरा पहले कॉमन ले लेते हैं, प्लस दूसरे वाले पे कितना लगा 80 × 10⁻³ लेंथ कितनी है 1000 mm, प्लस 50 × 10⁻³ लेंथ कितनी है 3000 mm, और ए पूरा कॉमन है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ई की वैल्यू कितनी है 190 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। एरिया कितना है π4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, इंटू डी स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर, और सारी चीज जो अंदर लिखी हुई है इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 10⁻³ से 10⁻³ ये पूरे कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे 10⁻³ यहाँ से। अब अंदर इसके क्या बचा 60 × 2000 प्लस 80 × 1000 प्लस 15 × 3000 इंटू 4 डिवाइड बाई 190 डिवाइड बाई 25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिर्फ दबा के पाई। तो इसकी इलोंगेशन जो आई डेल्टा एल 3.7527 mm, ये इलोंगेशन आई। तो बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आप थोड़ा सा याद रखें किस तरीके से फोर्स जो है अलग अलग सेगमेंट में लगेंगे, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। ए स्टील सर्कुलर बार हैज अ 3 सेगमेंट एज शोन इन फिगर। द टोटल elongation ऑफ बार हमें निकालना। द लेंथ ऑफ मिडल सेगमेंट टू हैव 0 elongation ऑफ द बार। थर्ड, द डायमीटर ऑफ लास्ट सेगमेंट टू हैव 0 elongation ऑफ द बार। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं इन्होंने, और वो 3 क्वेश्चन अलग अलग करके पूछ लिए। पहले तो सिंपली जो लोडिंग है, इस लोडिंग में आपको टोटल elongation निकालना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, द लेंथ ऑफ मिडल सेगमेंट टू हैव 0 elongation ऑफ द बार। अब इसकी लेंथ मिडल वाले की एल मान लेनी है आपको, और 0 elongation कर देना है, तो एल की वैल्यू निकाल लेनी है। तीसरे वाले में द डायमीटर ऑफ लास्ट सेगमेंट टू हैव 0 elongation ऑफ बार, और लास्ट में डायमीटर मान लेना है और टोटल 0 कर देना है। तो मैं पहला वाला बता देता हूँ एक बार करके, फिर आप, सिंपल है, कुछ नहीं है ये। तो इसमें भी देखो ए बी बी सी सी डी 3 सेगमेंट है। तो देखो इधर साइड पे लोडिंग क्या है, इधर साइड पे क्या करा गया, फिक्स कर दिया गया बीम को। तो आप इस राइट डायरेक्शन से चढ़ें। तो सबसे पहले बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बीसी का, सॉरी सीडी का।
तो ये हमारा CD हो गया। तो इसके यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ की, राइट साइड पे देखो कितना फोर्स लगा, 80 किलो न्यूटन। तो जितना राइट पे लगा होगा उतना ही लेफ्ट पे लगा होगा। CD, इसके बाद BC का नंबर आता है। बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। अब राइट साइड के फोर्स देखो, 80 एक साइड में है, 303 एक साइड में, 330 एक साइड में है। तो कुल मिला के इस पर कंप्रेसिव लोड लग गया कितना, 250 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगा। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, AB। तो AB के ऊपर लोडिंग देख लो। तो हम फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब 80 एक डायरेक्शन में है, 330 380 राइट साइड पे है, 330 क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो इसका मतलब बाहर हो गया 50 किलो न्यूटन का। ऐसे समझ लो, राइट साइड पे पॉजिटिव लेना है तो 80 पॉजिटिव प्लस माइनस 330 प्लस 300, तो कितना बचा, पॉजिटिव 50। तो ये आपके 3 सेगमेंट हो गए। तो सेम आप फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा एल इज इक्वल टू PL बाई AE। 80 किलो न्यूटन का लोड लगाए, ठीक है। ई सबके लिए कॉमन है, तो ई तो बाहर आ गया। 80 इंटू 10⁻³ एल कितना है, 250 PL बाई AE पाई इंटू 4 इंटू कितना है 20 का होल स्क्वायर, CD का लिख दिया, प्लस BC का लिख लो। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कंप्रेसिव लोड है। तो माइनस P 250 इंटू 10⁻³ एल कितना है 200 और पाई इंटू 4 इंटू 30 का होल स्क्वायर प्लस 50 इंटू 10⁻³ 150 पाई इंटू 4 15 का होल स्क्वायर, और 1/E उधर है ही। अब E की वैल्यू कितनी है वो आप रख दो चाहो तो। दो 205 इंटू 10⁻³ तो ये 3 से देखो, 3 सब जगह कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या रह गया, ये 80 इंटू 250 इंटू 4 डिवाइड बाई 20 का होल स्क्वायर, सिर्फ दबा के पाई। तो इसका वैल्यू आ गया 63.66। 250 इंटू 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 30 का होल स्क्वायर दबा के पाई, 70.73। और ये बचा 50 इंटू 150 4 डिवाइड बाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, 10 पॉइंट, ये आ गया 10.61। तो कुल मिला के हो गया 63.66 माइनस 70.73 प्लस 10.61 डिवाइड बाई 205। तो डेल्टा एल आपका आया 0.017 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम बाकी भी कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है जो काफी टफ भी है और अच्छा भी है। ए वर्टिकल सर्कुलर स्टील बार ऑफ लेंथ
3L fixed at both of its end, and its end is loaded an intermediate section by force W. 2W as shown in figure. Determine the end reaction if W is 1.4 kilonewton. तो इसमें देखो 3 सेगमेंट है, मान लिया कि मैंने रिएक्शन R लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो बीच में से कट कर देंगे तो जो AB सेगमेंट बचेगा इस पर रिएक्शन क्या लोड क्या हो जाएगा, R और R AB के लिए। अब बचा BC, तो 20 से कट करेंगे, ऊपर R 2W नीचे, तो ऊपर की तरफ R माइनस 2W, ठीक है। इसके बाद बचा CD, CD पे देखो लोड कितना लगेगा, R ऊपर 2W नीचे, तो R माइनस 3W और R माइनस 3W, लेंथ कितनी है L L L। अब ये दोनों एंड फिक्स हैं, तो टोटल एलोंगेशन क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले वाले में लोड कितना लगा R L, एरिया सेम है ए प्लस R माइनस 2W L अपॉन ए प्लस R माइनस 3W इंटू L अपॉन ए इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के बचा R प्लस R माइनस 2W प्लस R माइनस 3W इज इक्वल टू 0। तो 3R इज इक्वल टू 5W। तो 3R इज इक्वल टू 5W कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर। तो R इज इक्वल टू 0.5 और 2.5 किलोमीटर। तो रिएक्शन कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर की। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा रूल से चलेंगे तो ही इसे सॉल्व कर पाएंगे।